everyone, welcome back to Virudite. So this is second video of our single shot series in the subject of chemistry. For other subjects also videos are getting uploaded, so you can check out those videos. So the topic for this video will be chemistry in everyday life. This is an important topic for ISC students especially, and for JEE and for NEET students also. This topic is not in the CBSE syllabus, but the questions may come because this is very general topic. As we all know that we have come across so many chemicals in our day-to-day life, be it soaps, detergents, medicines, cosmetic, food items, beverages or any other things, we come across so many chemicals from day to night. So about all those chemicals we will study in this chapter. Two major things which we will study is chemistry in medicine and chemistry in food. So let's talk about chemistry in medicines. So what do we call medicines? We call medicines as drugs. What is a drug? A drug is a chemical substance which is used in the treatment or cure or prevention or diagnosis of disease or used to otherwise enhance physical or mental well-being. So drug can be of any type. It can be used for treatment, for cure, for prevention or for diagnosis of any type of diseases. Those type of diseases or those type of preventions or preventive measures are called drugs. Drugs can be in the form of liquidy syrups, in the form of tablets. It can be in any form. Okay. Now, generally the word drugs starts with anti. Okay, it means against anything. So the word for drugs or the basic classification of drugs starts with the word anti, like antacids, antihistamines, antipyretics, antibiotics, which means they are against. Like for example, antipyretics. This means it is against pyretics. Pyretics means decrease down the body temperature. So antipyretics are those drugs which can decrease down the body temperature. Now antacids. So the next category is antacids. Antacids means against acids. उन एसिड्स के अगेंस्ट में ये ड्रग्स वर्क करते हैं जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड क्रिएट हो गया है. उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटासिड्स. अब जो एसिड हमारा यूज एक्सेस क्रिएट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, दैट एसिड इज बेसिकली HCl. इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस HCl इन गैस्ट्रिक जूस. Okay, so what are antacids? The chemical substances used to remove the excess acid and raise the pH to an appropriate level in stomach. हमें पता है कि जैसे जैसे एसिड बढ़ता जाता है, बढ़ता है तो उसका pH क्या होता है, कम होता जाता है. तो एंटासिड्स का काम क्या होता है? एंटासिड्स pH को इंक्रीज करते हैं. pH को कैसे इंक्रीज करेंगे? न्यूट्रलाइज करके. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड के साथ. हम कैसे रिएक्ट करा सकते हैं? बेस को, जिससे उसका pH क्या है वो इंक्रीज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए एसिड. सो जितने भी एंटासिड्स हैं, दे आर बेसिकली बेसेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, aluminium hydroxide, sodium bicarbonate, these all are bases and these bases acts as antacids. Now next is antihistamines. So histamine, what do you mean by antihistamines? Which are the drugs which control the production of histamine in the body. So what is histamine? Histamine is a type of a hormone which is secreted by our body due to allergic effects. So the drugs used to combat the allergic effects of histamines are called antihistamines. अब histamine कब हमारे बॉडी में रिलीज होती है, जिसकी रिलीज को एंटीहिस्टामिन्स जो है वो सप्रेस करती हैं. जब भी हमारे बॉडी में कोई एलर्जी होती है, एलर्जी कैसी भी हो सकती है, एयर ब्रोन हो सकती है, वाटर ब्रोन हो सकती है, फूड ब्रोन हो सकती है, मतलब एयर से हो सकती है आपको एलर्जी. हर एक बॉडी को अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती हैं. तो जैसे भी अगर कोई एलर्जी है तो आपका कोई बाहर से एंटीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा, उसको कम्बैट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी जो है वो रिलीज करता है. उस प्रोसेस में कुछ हिस्टामिन जो होती हैं या सेरोटिन करके कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी सेक्रीट करती है. उसके साथ वर्क करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, ताकि वो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल या फिर उसके प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर कर पाए. सो बेसिकली antihistamines interfere with the natural action of histamines by competing with histamine for binding sites of receptor where histamine exerts its effect. बेसिक से एंटीहिस्टामिन्स जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे
ब्रोमफेनेरामीन जिसको हम डाइमेटेप और डाइमेटेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस। जो टेंशन में, डिप्रेशन में जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। जो डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं हम इनको, ट्रैंक्विलाइजर्स को। ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते बिकॉज दे आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इनका ऐसे, ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये स्लीपिंग पिल्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये स्लीप में हेल्प करते हैं ताकि हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। Commonly used tranquilizers are derivatives of barbituric acid and are called barbiturates. Barbituric acid करके एक केमिकल कंपोनेंट होता है, उस कंपाउंड के डेरिवेटिव्स ज्यादातर ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह यूज किए जाते हैं। और जो ट्रैंक्विलाइजर्स बार्बिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बार्बिटूरेट्स। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल हैं, इसमें वेरोनिल और अमाइटल जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड है, तो आप इन दोनों को बोल सकते हैं दे आर बार्बिटूरेट्स। और जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो है आइप्रोनाजिड, नार्डिल और फेनिलजीन। नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स बहुत बेसिक से ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स बहुत बेसिक से ड्रग्स होते हैं। द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर। ओके, ये जो एनाल्जेसिक्स है इनका बेसिक वर्क होता है पेन रिलीवर्स। दे आर पेन रिलीवर्स। लेकिन कैसे? विदाउट कॉजिंग एनी इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई भी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे बिना पेन को कम कर देना। दैट दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, मॉर्फिन, कोडीन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये सब क्या करते हैं? मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस के बिना हमारी बॉडी के पेन को रिलीव करते हैं। नाउ यू विल से मॉर्फिन, कोडीन और जो और भी हेरोइन वगैरह होते हैं, वो सारे ड्रग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उनका रीजन आगे है नेक्स्ट स्लाइड में। सो एनाल्जेसिक्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स कौन से ड्रग्स होते हैं? नार्कोटिक्स आर एडिक्टिव ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जिनकी हमें एडिक्शन हो जाती है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, मैरिजुआना, इन सब की हमें एडिक्शन हो जाती है। इन एडिक्शन की वजह से एक्सेस ड्रग हम इनटेक कर लेते हैं, और किसी भी चीज की अगर आप एक्सेस करेंगे तो दैट विल श्योरली हार्म योर बॉडी। बी इट एस्पिरिन, पैरासिटामोल, और कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज हो, कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज हार्मफुल फॉर अस। एवरीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल फॉर अस। So that's why these narcotics harm our body and can create mental confusion. There are some other analgesics also which are non-narcotics and they are non-addictives. For example, aspirin, paracetamol, ibuprofen, diclofenac sodium. That's why doctors recommend करते हैं कि paracetamol और aspirin वगैरह 3 या 4 tablets per day से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, because they are analgesics and they may become narcotics if you take extra dose. Okay, so they may harm your body also. So don't take extra drug without prescription. Next is antipyretics. बहुत ही common से chemical substances which are used to bring down body temperature. Fever में, high fever में जो drugs हम लेते हैं, those drugs are called antipyretics. For example, paracetamol, aspirin, पेनिसिटिन, और भी आप जितने भी ड्रग्स हैं जो आप एंटीपायरेटिक्स की तरह फीवर में यूज करते हैं, उन सब के आप एग्जांपल्स यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि ये जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए अभी तक सारे मेडिसिन्स के, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इस बार आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स नॉट रिक्वायर्ड। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ दीज एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, उनकी डेफिनेशन, उनके यूजेस और उनके एग्जाम्पल्स ही हमें पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होता है? एंटी ऑन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जस्ट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब के थ्रू जो भी डिजीजेस होती हैं उनको क्योर करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीमाइक्रोबियल्स। अब कैसे कैसे हो सकते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स या एंटीमाइक्रोब्स कैसे हो सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। या तो कोई आप एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ले लो,
जो बिल्कुल उसको खत्म कर दे, बैक्टीरिया या फंगाई वायरस को खत्म कर दे, या यूजिंग अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग मींस कि जो बैक्टीरिया या फंगाई या वायरस हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ को कम कर देना, या ग्रोथ को उसकी रोक देना। स्टैटिक वर्ड मींस किसी भी चीज के मोशन को स्टॉप कर देना। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को स्टॉप कर देना। सो ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर दें, एंटी बैक्टीरियल। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर दें या ग्रोथ को स्टॉप कर दें। या फिर क्या हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करना। यही है जो आपके कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो आपने एज वैक्सीनेशन लिया है। वैक्सीनेशन क्या करता है, हमें बॉडी की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। तो 3 टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरिया को प्रॉपरली किल कर देने वाले, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देने वाले, या फिर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को इंक्रीज करके हम ये 3 तरीके से हमारे बॉडी को माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एंटीमाइक्रोबियल्स में आते हैं एंटीबायोटिक्स, सल्फा ड्रग्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होता है? An antibiotic is a type of antimicrobial substance active against bacteria. जो भी बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी में डिजीजेस होते हैं उनको किल करने के लिए या उन डिजीजेस को सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं, those drugs are called antibiotics. It is the most important type of antibacterial agent for fighting bacterial infections, and antibiotic medications are widely used in the treatment and prevention of such infections. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. ये क्या कर सकते हैं? मेजर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जब भी आपको फीवर होता है तो डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ एक और ड्रग देता है, एक और मेडिसिन देता है आपको। दैट मेडिसिन इज एंटीबायोटिक। कि जो भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है, फीवर जिस भी रीजन की वजह से होता है, पैरासीटामोल जो हम लेते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए होता है, लेकिन फीवर होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में एंटीबायोटिक डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है। सो दैट दोज एंटीबायोटिक्स कैन बी पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैनकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। इसलिए अगर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको इस चैप्टर में याद करने की, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये आप प्रैक्टिकली करते ही हो, ये आपके ऊपर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटेशन हो ही रहा है। तो ये इस चैप्टर में याद करने जैसा कुछ नहीं है, बट येट क्वेश्चन इससे आते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें बस आपको एग्जाम्पल्स थोड़े से याद रखने हैं। वो भी आप अगर हैबिट डाल लोगे ना कि जो मेडिसिन आती हैं उनके पीछे के जो ड्रग्स लिखे होते हैं, आप अगर उन्हें पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको आधे से ज्यादा मेडिसिन ऐसे ही आ जाएंगी। यू विल बी अ केमिस्ट इटसेल्फ। और बाकी इंडियंस में तो हैबिट होती ही है कि हम तो वी आर अ सेल्फ डॉक्टर, तो आधी मेडिसिन तो आपको पता ही। सो दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग फॉर यू इफ दिस चैप्टर कम्स इन योर एग्जाम। सो पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो हमारी डेवलप हुई थी। इसको भी अगर कभी कभी आ जाता है किसी ऐसे जनरल से क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक वही एन एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस और कंपाउंड दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू और स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और प्यूट्रिफैक्शन। क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक्स कभी भी चोट लग जाती है तो जो हम यूज करते हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। चोट की वजह से क्या होता है कि हो सकता है कुछ माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो जाए हमारे उस स्किन के ऊपर, तो उनको उस ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। मेजर घरों में इंडियन हाउसेस में जो यूज होते हैं दैट इज डेटॉल, सेवलॉन, ठीक है। बाकी सोफ्रोमाइसिन है, आयोडीन टिंचर है, फ्यूरासीन है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सब भी एज एंटीसेप्टिक्स आप यूज कर सकते हो। बस इसको आप ये देख लेना कि समटाइम्स हर बॉडी पार्ट पे आप ये यूज नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, दे आर एंटीसेप्टिक्स, बट हो सकता है कि कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स आपके डेलिकेट होते हैं तो वहां पर ये थोड़ा सा हार्म कर सकता है। प्लस हर एक बॉडी एलर्जिक भी होती है, हर एक बॉडी का टाइप अलग अलग होता है, तो मे बी some antiseptics or some medicines can harm your body too. So beware, take doctor's prescription, try to do a patch test before you try any drug or any antiseptic or any other thing on your skin.
Next is disinfectant. Disinfectant is also a chemical substance or compound used to inactivate or destroy microorganisms on inert surface. ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही होते हैं. जैसे आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं वैसे ही आपके डिसइंफेक्टेंट्स भी होते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं दोनों ही माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को. बस डिफरेंस क्या है, एंटीसेप्टिक्स आप लिविंग टिश्यूज पे यूज कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट्स को आप कभी भी लिविंग टिश्यूज पे यूज नहीं कर सकते, आप उन्हें इनर्ट सरफेस पर ही यूज करोगे. सो वी कैन से कि एंटीसेप्टिक्स कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स बट डिसइंफेक्टेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स. इनर्ट सरफेस का यहाँ पे मतलब क्या है, ऐसे सरफेसेस जो लिविंग नहीं होते हैं, जैसे कि आप टेबल टॉप पर यूज कर सकते हो, आप वाटर बॉटल क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, या जो भी आप यूज सरफेस ऐसे यूज कर सकते हो जो लिविंग नहीं है, उनको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स. फॉर एग्जांपल फिनाइल्स है, अल्कोहल्स है, इन सबको आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो. Now this is very important topic, difference between antiseptics and disinfectants. Antiseptic is used for humans and animals, for living tissues, है ना? And disinfectant is used for non-living things like furniture and any other household items. Antiseptic कहाँ मिलता है? Commonly found in healthcare centers or hospitals or medical shops. Disinfectants homes में या public places में available होता है. Lysol वगैरह आपको easily market में available होता है. Antiseptic cleanses wounds and surgical sites to prevent infection and other complications. Wounds को clean करता है, surgical site में से infection को prevent करता है. ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है जो नॉन लिविंग थिंग्स पर होते हैं. अगर आपने कभी यूज कर लिया बॉडी पे तो आपका बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जगह हार्म और कर देगा. सो डोंट डू दिस. Includes mouthwash and cold sore and yeast infection treatment creams. ये सब भी एंटीसेप्टिक में ही आते हैं, माउथ वॉशेस वगैरह. इसमें क्या आता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग और पब्लिक प्लेस क्लीनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब डिसइंफेक्टेंट्स में आता है, हार्पिक, लाइजोल, फिनाइल्स वगैरह. ये क्या है, ट्रांसपोर्ट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया विद इन ह्यूमन बॉडी. लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाता है और बॉडी के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है. ये क्या करता है, destroy the cell wall of microorganism or interferes with the metabolism of microbes thriving on the surface of tangible objects. यही प्रॉब्लम है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हो डिसइंफेक्टेंट्स को एंटीसेप्टिक की तरह. ये क्वेश्चन अगर आता भी है, why disinfectants can't be used as antiseptics or why disinfectants can't be used on living tissues, तो आपको ये बोलना है because disinfectants destroys the cell wall of microorganisms or interfere with the metabolism of microbes thriving on the surface of the objects or the surface of the skin, which will eventually harm the living tissues. That's why we cannot use disinfectants on a living body, or we cannot use disinfectants as antiseptics. Obviously antiseptic is not harmful to humans and disinfectant is harmful to humans. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है. Now next, anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs are chemical substances which suppress the action of hormones that promote pregnancy. These drugs actually reduce the chances of pregnancy and act as protection. Anti-fertility drugs are made up of derivatives of synthetic progesterone or a combination of derivatives of estrogen and progesterone. क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रेगनेंसी को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, those drugs are called anti-fertility drugs. कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉरेथिनड्रोन एंड एथिनाइल एस्ट्राड्रोल. नाउ केमिस्ट्री इन फूड. फूड में तो हर जगह केमिस्ट्री है ही है. लेट्स सी, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. एज द नेम इटसेल्फ, ऐसे एजेंट्स जो आर्टिफिशियली मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते, और उनसे हमारे फूड में कैसे स्वीट फ्लेवर आता है. Artificially made sweetening agent. Chemicals that sweeten foods are called artificial sweetening agents. They do not add calories to our body. They do not harm our body. ऐसा नहीं है. Some sweetening agents can harm our body also and some have added calories also. तो ये statement सबके लिए तो true नहीं होता है, but yes, mostly ये true होता ही है. जनरली एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रोलोस और एलिटेम जो है वो एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह यूज करता है. कितनी स्वीटनेस देता है ये नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में? सो एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीट होता है एज केन शुगर जो हम यूज करते हैं.
चीनी जिसको बोलते हैं। सैकरिन 250 to 550 टाइम्स स्वीटर होता है। एस्पार्टेम 120 to 200 टाइम्स स्वीटर होता है। सुक्रालोज 550 to 700, साइक्लेमेट 30 to 50 एंड एसिसल्फेम के लेस देन 200 टाइम्स स्वीटर होता है एज कंपैरिजन टू केन शुगर। यस, सो ये कैलोरीज ऐड नहीं करते बॉडी में। इसका मतलब क्या है कैलोरीज ऐड नहीं करने का, कि दे कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एंड दे आर इजीली डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कैलोरीज ऐड नहीं करते, बट दे आर इजीली डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम दैट दे आर नॉट कैलोरिफिक। इसमें सैकरिन जो है वो सबसे बिल्कुल 0 कैलोरीज वाला है। So you can use saccharin as a substitute if you are diet conscious. Next is food preservatives. As the name itself, they are used for preserving the food for a longer time, which means to stop the spoilage of food caused by any other reactions, any other external factors. Any of the numerous chemical additives used to prevent or retard spoilage caused by chemical changes such as oxidation or the growth of mold. ऑक्सीडेशन के थ्रू बहुत सारे स्पॉइलेज हो सकते हैं, या फिर मोल्ड के फॉर्मेशन की वजह से फूड बहुत स्पॉइल हो सकता है, तो वहां पर जो केमिकल्स यूज होते हैं दोस केमिकल्स आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, ये रहा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड एंड एपॉक्साइड, ये होता है आपका सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, और ये कुछ एपॉक्साइड होते हैं। एपॉक्साइड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग बनती है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन की, तो इसे हम बोलते हैं एपॉक्साइड रिंग। ठीक है, तो एपॉक्साइड्स सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट्स, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स में। जनरली सोडियम बेंजोएट ज्यादा यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स में। ये आपको पैकेज्ड फूड में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पैकेज्ड फूड कैन रेसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो पैकेज्ड फूड कंटेन्स फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड दे आर definitely chemicals, so by directly or indirectly they can harm our body. That's why we say that don't eat packaged food too much, because it is indirectly consumption of chemicals which will eventually harm our body. Now next is antioxidants. Antioxidants are those substances, those chemical substances which retard the action of oxygen on the foodstuffs and thus help in their preservation. एंटीऑक्सीडेंट्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब आप एक बोल सकते हो फूड प्रिजर्वेटिव्स आर अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर अ टाइप ऑफ अ फूड प्रिजर्वेटिव ओनली। ये बेसिक सा क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो एक्शन है फूड के ऊपर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं। दे एक्ट एज सैक्रिफिशियल मटेरियल। क्यों इनको हम सैक्रिफिशियल मटेरियल बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट कर जाते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये पहले रिएक्ट करते हैं फूड से ज्यादा इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ फास्टर होता है। तो फूड के कांटेक्ट में जैसे ही ऑक्सीजन आता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो रिएक्ट कर जाते हैं और फूड सेव हो जाता है उतने टाइम के लिए। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सैक्रिफिशियल मटेरियल्स। दे इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन बट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज। सो बेसिक से एंटीऑक्सीडेंट्स है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन जिसे हम बोलते हैं BHT एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल जिसे हम बोलते हैं BHA, ये दोनों यूज होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the channel. It will not only motivate you to study, it will also encourage us to make more videos for you. Don't forget to comment down the next topic which you want to see in our videos. So enjoy learning with the erudites. Happy learning.